Hello everyone, welcome to your favorite Byju's 6, 7 and 8 channel. My name is Khushbu and today we are going to be discussing questions on fractions and decimals. So let's get started, but before I properly start the session, quickly first subscribe to the channel so that you keep getting notifications about the sessions and do like the session as well if you feel session was useful and interesting. And you can see that this is the schedule for the upcoming sessions that we are having on the channel. So 6 o'clock ka jo slot hai, that is for grade 6. 7 p.m. we are going to have sessions for grade 7 and similarly 8 p.m. for grade 8. You can take a screenshot of this so that you know whenever which sessions are happening. Alright, so without wasting any more time here, let's get started. So here we have our first question. As I said, concepts have already been discussed in the concept sessions हमने पहले करे. If you have missed that out, you can always check that. आप जाके playlist check कर सकते हैं channel पे. Alright, so here we have our first question. A rectangular sheet of paper is 12 1 by 2 centimeter long and 10 2 by 3 centimeter wide. Find its perimeter. So this is the rectangular sheet of paper. इसका length and width हमारे पास है. We have to find out the perimeter. So perimeter क्या होता है? What does perimeter means? It means the total length of the boundary, right? Total length of the boundary. In case of rectangle, what is the perimeter? So in case of rectangle, how do we find out the perimeter? Is twice of length plus breadth, right? That's how we find this out. अब length और breadth यहाँ पर क्या है? This is the length and this is the length and this is the breadth, right? But the problem here is this is in mixed fraction. So mixed fraction go first, we will convert that into improper fraction, right? That's how we do it. So perimeter is going to be twice of 12 1 by 2 plus 10 2 by 3. That's how we will find it out. So perimeter is going to be twice of, so 12 1 by 2. How do we convert that into improper fraction? That's 2 into 12. That's 24 plus 1. 1 को add कर दिया. You get 25. Denominator remains the same. So 25 by 2. Plus sign 3 into 10. This gives you 30. Plus 2 किया, you get 32. Denominator same चलेगा, that's 3. So finally, you have this in improper fraction. अब we can see कि हम इसको finally add नहीं कर सकते because the bases are different, denominators are different. So first you have to make the denominator same. That means we will take LCM. So LCM of 2 and 3 will be what? That would be 6, 2 और 3 का LCM. So this will become what? Perimeter is going to be, अगर मैं इसका LCM कह रही हूँ कि LCM यहाँ पे 6 है. That means what? आपको denominator को 6 करना है. Denominator को 6 करने के लिए आप क्या करोगे? आप इसको 3 से multiply करोगे. But if you are multiplying the denominator by 3, you will have to multiply the numerator also by 3, right? That's how we do in maths. So that is also multiplied by 3. Similarly, here in the next fraction, if you are multiplying the denominator by 2, you have to multiply the numerator as well by 2 over here, right? So this is what we have finally. अब इसका हमें perimeter find करेंगे तो क्या बनेगा? That will be twice of 25 into 3. So perimeter in this case is going to be, perimeter would be equal to twice of 25 into 3 is 75 upon 6 plus, what do we have here? 32 into 2. That's going to be what? 64 by 6. Right? अब simplify करना है इसको बस 75 plus 64. What do we get? We have 139 by 6. अब 2 और 6 को हम cancel out कर सकते हैं. So we have 2 1s are 2 3s are. So finally we have 139 by 3. 139 by 3 centimeter. That's the final perimeter for this rectangular sheet of paper. So this was simple. There's nothing difficult in it. You just need to know the formula. And if it is in mixed fraction, convert that into improper fraction. And this is the normal simplification. कुछ small, कोई छोटे-छोटे points को ध्यान रखना है कि LCM कब लेना है, क्यों ज़रूरी होता है. अगर ये सब नहीं पता तो गलती हो सकती है. Otherwise, question there is nothing difficult in it. All right, let's move ahead to the next question. Now Sally plants 4 saplings in a row in her garden. तो वो 4 saplings लगाती है. 4 saplings. The distance between 2 adjacent saplings is 3 by 4. दो adjacent means neighboring ones जो साथ साथ आ रहे हैं, उनके बीच का distance हमें कितना दिया हुआ है? That's 3 by 4. हर दो saplings के बीच का distance is 3 by 4. That's what it means. Find the distance between the first and the last sapling. आपको first से last sapling का distance निकालना है. Now as the question says, दो adjacent saplings के बीच का distance is 3 by 4 meter. This is 3 by 4 meter, first and second sapling का. Second और third sapling के बीच में भी 3 by 4 meter. Third से fourth sapling के बीच में भी 3 by 4 meter. So this is happening 3 times. 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4 ऐसा 3 बार हो रहा है, right? So simply instead of adding them up, what we can do is, we can simply say 3 by 4 into 3, which will give me what? 9 by 4.
9/4। अब आप चाहें तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइनली इसे कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 4 2 ज़ा 8, राइट। और हम इसे कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, दिस इज 2, यहाँ पर एज इट इज आपका जो क्वोशंट है, राइट, यहाँ पे रिमाइंडर विच इज 1/4, 2 1/4 meters, दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। सो रादर एडिंग देम अप, द बेटर वे इज कि आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 3, क्योंकि ये 3 बार हो रहा है। चलिए, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shama bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 gram mangoes. Shama ने इतने एप्पल्स लिए हैं और इतने मैंगोज लिए हैं। Sarala bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. ये सरला ने लिए हैं। Who bought more fruits? अब बेसिकली हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, ओनली देन यू कैन कंपेयर। अब किलोग्राम ग्राम आप दोनों लिख दोगे तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द यूनिट सेम हियर। बेसिकली मैं सबको किलोग्राम में कन्वर्ट करने वाली हूँ। कैसे? फर्स्ट केस हम शामा का देखते हैं। यहां पर वी आर चेकिंग शामास केस, राइट। शामा के केस में क्या हो रहा है, 5 kg 300 ग्राम्स है प्लस 3 kg 250 ग्राम मैंगोज है। इफ यू एड देम अप, पहले हम ग्राम साइड से करते हैं, 300 ग्राम और 250 ग्राम कितना बन जाएगा, that will give you 550 ग्राम। 5 kgs और 3 kgs कितना हो जाएगा, that's basically 8 kgs। ये टोटल हो गया शामा के केस में, राइट। अब सिमिलरली मैं फाइंड आउट करूंगी सरला के केस में। सो इन केस ऑफ सरला इट्स बेसिकली 4 kg 800 ग्राम्स प्लस 4 kgs 150 ग्राम्स। ग्राम्स में क्या है, 800 ग्राम्स एंड 150 ग्राम्स। सो फाइनली हो गया ये 950 ग्राम्स। 4 kg बन गया आपके पास 8 kgs। ये तो आपका आ गया किसके अंदर, किलोग्राम ग्राम दोनों में चल रहा है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को जो सरला ने परचेज किया है, जो शामा ने परचेज किया, उसको हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन आई होप सबको पता है। ग्राम टू किलोग्राम जाने के लिए, ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट, किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट। जब आप स्मॉल टू बिगर यूनिट जाते हैं आपको डिवाइड करना पड़ता है। सो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 8 kgs प्लस 550 अपॉन 1000। जैसे ही मैंने इसको 1000 से डिवाइड करा, दैट मीन्स अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 8 kgs। नाउ देयर आर 3 zeros इन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में जो डेसिमल है वो 3 प्लेस के बाद लगेगा, राइट साइड से 3 प्लेस के बाद, मतलब 0 5 5 उसके बाद डेसिमल लगेगा। सो वी हैव 8 kgs और ये क्या बन गया हमारे पास, प्लस 0.550 kgs, राइट, 3 प्लेस के बाद डेसिमल। अब मैं इनको आराम से ऐड कर सकती हूँ और मुझे ये क्या मिल जाएगा, 8.550 kgs। ये आ गया हमारे पास शामा के केस में। नाउ इन केस ऑफ सरला सेम चीज, आपके पास 8 kgs तो एज इट इज है। अब 950 ग्राम्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो, सो दैट्स 950 अपॉन 1000 किलोग्राम, राइट। अब ऊपर 950, नीचे 1000, नीचे 3 zeros हैं तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल। सो वी हैव 8 किलोग्राम्स प्लस 0.950 किलोग्राम्स। दोनों किलोग्राम्स में आ गए, अब ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू गेट, 8.950 किलोग्राम्स। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज नाउ द यूनिट्स आर सेम। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आप कह सकते हो दोनों का ये 8 सेम है, डेसिमल से पहले होल नंबर पार्ट सेम है। आफ्टर द डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट को देखें तो यहाँ 5 है, यहाँ 9 है। So it's clearly evident कि Sarla has bought more fruits. So answer would be what? Sarla bought more fruits. This is what you need to mention at the end कि Sarla bought more fruits. That's it. So ऐसे questions कभी भी आ जाए, first makes a unit similar. So इसके लिए आपको conversions आने चाहिए. That's very important. और calculations में you have to be, I would say, not just quick, accurate होना बहुत जरूरी है because इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। चलिए, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर्स? 28 किलोमीटर्स 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? हाउ मच लेस इज इट? वो तो सब्ट्रैक्ट करके पता चलेगा। सो व्हाट वी विल डू, सिंपली यू विल राइट 42.6 एंड यू हैव 28। जब भी आप डेसिमल्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मेक श्योर डेसिमल इज 1 बिलो द अदर, राइट। सो यहाँ 28 के बाद कोई डेसिमल नहीं दिख रहा, तो डेसिमल डेफिनेटली इसके बाद है। अगर कहीं नहीं लगा हुआ तो पहले नहीं है, दैट मीन्स बाद में हो गया, तो इसके बाद आ गया डेसिमल। इफ देयर इज नथिंग आफ्टर दैट यू कैन पुट जीरोस। आप यू कैन पुट एज मच जीरोस एज यू वांट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आपने जीरो लगा दिया, नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट। बट ये ध्यान रखना है कि डेसिमल 1 बिलो द अदर। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 42.6 और यहाँ 28, या ऐसे लिख दिया 42.6, ओके, और अगर आपने ऐसे लिख दिया 42.6 और यहाँ 28,
दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. तो आपको ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं डेसिमल दिया हुआ दैट मीन्स उसके एंड में डेसिमल है और डेसिमल 1 बिलो द अदर करना है. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 0 6 होता है, राइट. डेसिमल को एज इट इज पुट कर दीजिए. 2 में से 8 नहीं जाता तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसे आप बोरो करके करते हैं. ये बन गया 12, यू हैव 4 एंड दिस इज 1. सो फाइनल आंसर इज 14.6 किलोमीटर. लाइक नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है बट डेसिमल का ध्यान रखा है, बस 1 बिलो द अदर. दैट्स इट. चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. A vehicle covers a distance of 43.2 kilometers in 2.4 liters of petrol. इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है ये 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल? जनरली स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. डेफिनेटली एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कहीं सेंस नहीं बना रहा. अब मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, जब भी क्वेश्चन आपसे एक चीज की क्वांटिटी मांगे, जैसे यहाँ पे पूछा 1 लीटर पेट्रोल में कितना करेगा, तो इट्स ऑलवेज डिवीजन. डिवाइड करके ही आप बता सकते हो, मल्टीप्लाई करके तो यू विल इंक्रीज द वैल्यू, राइट. आपको बोला है 43.2 किलोमीटर चला जाता है 2.4 लीटर पेट्रोल में, तो 1 लीटर कितने में करेगा? तो 1 लीटर निकालने के लिए यू हैव टू डिवाइड. जब भी एक का मांगा जाए इट इज ओनली डिविजन दैट यू हैव टू डू. सो डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, राइट. सो डिस्टेंस कवर्ड इन, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर्स पेट्रोल, लीटर्स ऑफ पेट्रोल, that's basically 43.2 kilometers. ये हुआ 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना कवर किया, right? And then distance covered in 1 liter of petrol. So this is called unitary method. जब आप किसी एक की क्वांटिटी निकालते हैं, ज्यादा का दिया होता है, that's called unitary method. So 43.2 upon 2.4, right? तो आपके पास यहाँ से डिस्टेंस आएगा. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अब ये हो रहा है 43.2 डिवाइड में है 2.4. बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा. बेसिकली 43.2 को आप 2.4 से डिवाइड कर रहे हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसका डेसिमल रिमूव करूंगी तो नीचे आएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट थी. 2 डिजिट होती तो हम 100 लगाते. सिमिलरली यहाँ डेसिमल रिमूव करा तो आया 10. तो ये क्या बन गया 432/10. अब डिवीजन में ऐसे कैंसिल आउट नहीं होता, मैंने आपको रूल बताया था, राइट. इफ यू रिमेंबर, यू हैव सीन द सेशन कॉफीज, दैट्स CFS, राइट. सो हमने इसको डिवीजन सिंबल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में. इसके बाद वाले फ्रैक्शन को F मतलब फ्लिप कर दिया और यू कैन से रेसिप्रोकल कर दिया बाय 10 एंड देन यू सिंप्लीफाई, CFS, राइट. ओके, सो 10 and 10 यहाँ पर हो गया कैंसिल आउट. अब आप सिंपली कैंसिल आउट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 6 4s are 24, 6 7s are 42 एंड 12 बन गया, 6 2s are 12. अब 4 के टेबल से कट हुआ, 4 1s are 4, ये 32 बन गया, 4 8s are 32. जिस मर्जी टेबल से आप कट कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट 6 से ही कट करना है. सो 18 किलोमीटर्स इज फाइनली द आंसर. सो आई थिंक नाउ यू नो कैसे डेसिमल्स में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे कन्वर्जन हो रही है, कैसे डिविजन हो रहा है, यूनिटरी मेथड क्या है. बट बेटर जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी. सो 5 क्वेश्चंस यू हैव डन विद मी. कोई प्रीवियसली आपने सेशन मिस करा है फ्रैक्शंस डेसिमल्स का, यू कैन वॉच ऑन द चैनल. रिकॉर्डेड सेशंस वहां पर है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. इन केस स्टिल कोई डिफिकल्टी है, कोई भी डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज लेट अस know in the comment section below, and make sure to subscribe to the channel ताकि आपको ये सेशंस पता चलते रहें. Thank you so much. Take care. Bye bye.